को कांटेक्ट किया था मैम, उन्होंने कहा सुबह डिस्पैच कर देंगे। चलो सही हो गया, ठीक हो गया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से अपने सिलेबस को ओवरव्यू करें। तो हमारे पास पहले पेपर के ये चीज़ें हैं। लॉ 1 में हमने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस पढ़ा, ठीक है। फैमिली कोर्ट एक्ट को अब हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। ठीक। चलें तो यहाँ पर मैं करती हूँ। अच्छा जी, सेक्शन 5 jurisdiction. Subject to the provision of Muslim Family Laws Ordinance 1961 and Conciliation Courts Ordinance 1961, the Family Court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear, and adjudicate upon matters specified in Part 1 of the schedule. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1898, the Family Court shall have jurisdiction to try the offences specified in Part 2 of the schedule where one of the spouses is victim of an offence committed by the other. The government may amend the schedule through addition, deletion or substitution of any entry in the schedule. अब सेक्शन 5 में आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि स्केड्यूल एक अटैच है जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 पार्ट 2 के हवाले से फैमिली कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि उस पर इंटरटेन कर सकता है, सुन सकता है और उस पर जुडिशियल डिटर्मिनेशन कर सकता है, मतलब डिसीजन दे सकता है। जो पार्ट 1 में है वो फैमिली मैटर्स है, ठीक है। और जो पार्ट 2 में बताए गए हैं फैक्ट्स, जो मैटर्स इन्यूमरेटेड हैं, उसमें ये होता है कि जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को विक्टिमाइज करेगा ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, वहां पर सीआरपीसी अमल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरी ठीक। बात? जी। अच्छा जी, उसके बाद हम सेक्शन 7 पे आते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का तरीका बताया हुआ है। Institution of suit. Every suit before a family court shall be instituted by the presentation of plaint or in such other manner and in such court as may be prescribed. The plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intending to be produced in support of the plaint, the names and addresses of the witnesses, and brief summary of the facts to which they would depose. अच्छा, पहली बात ये है कि प्लेंट की प्रेजेंटेशन से आप ये समझें कि दावा इंस्टीट्यूट हो गया, सही है। फिर हमें प्लेंट के हवाले से फॉर्मेट भी पता चल गया कि जो डिस्प्यूट है, कंट्रोवर्सी, उसकी डिटेल्स देनी है आपने, और एक स्केड्यूल अटैच होगा जिसमें विटनेसेस की डिटेल होगी, ठीक है, उनके नाम, पते और वो जो गवाही देना चाह रहे हैं उसकी ब्रीफ समरी होगी, ठीक है। Provided that a plaint for a dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belongings of wife, custody of children and visitation rights of parents to meet their children. अच्छा, अब यहाँ पर प्रोवाइजो के हवाले से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंसोलिडेशन ऑफ सूट से क्या मुराद है, या कोई ऐसा केस है जिसमें तमाम क्लेम्स को कंसोलिडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज में ये तमाम क्लेम्स आप मांग सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? जी। जी। Provided further that parties may, with the permission of the court, call any witness at any later stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice, ठीक है। फिर अदालत से अलाउ करवा के किसी भी स्टेज पे विटनेस को कॉल करवाया जा सकता है। Subsection 3. Where a plaintiff sues or relies upon a document in his possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented, and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint. ये क्लियर है आपको? जी। जी। ठीक है। इसका सब क्लॉज 2 है, where he relies on any other document not in his possession or power as evidence in support of his claim, he shall enter such documents in a list to be appended to the plaint, giving reasons of relevancy of these documents to the claim in the plaint. ये भी ठीक है। एक तो हमें हो गया जो उसकी पोजेशन में, और जो उसकी पोजेशन में नहीं है तो उसकी डिटेल्स दे देगा, एक रेलिवेंसी की लिस्ट अटैच कर देगा, रीजन बताएगा कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है। The plate shall be accompanied by as many duplicate copies thereof, including the schedule and list of documents referred to in subsection 3, as there are defendants in the suit for service upon the defendants. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 8, intimation to defendant. When a plaint is presented to a family court, it shall fix a date which shall not be more than 15 days for the appearance of the defendant. Within 2 days of the presentation of the plaint, send a notice of summons of the suit to a defendant through a process serving agency of the family court, registered post acknowledgement due electronically or through courier.
together with a copy of the plan and a copy of the schedule referred to in subsection 2 of section 7 and copies of the documents and list of documents referred to in subsection 3 of section 7. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी जी ठीक है. C clause है direct that the notice or summons issued under clause B also be served through affixation and shall simultaneously issue a proclamation in newspaper. Subsection 2. While issuing the notice or summons to a defendant, the family court shall require the defendant to submit a written statement on the day mentioned in the notice or summons. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी. अच्छा जी, प्लेंट भी प्रेजेंट हो गई, इंटीमेट भी कर दिया. अब डिफेंडेंट की बारी है रिटन स्टेटमेंट के हवाले से. सेक्शन 9. ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 8 जो कि 15 दिन है, ठीक है, द डिफेंडेंट शैल अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट and file the written statement, a list of witnesses and gist of evidence, and in case the written statement is not filed on that date, the family court may, for any sufficient reason which prevented the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the written statement and other documents on the next date which shall not exceed 15 days from that date. पहले 30 दिन का टाइम होता था, अब उसको डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, क्लियर है? जी. अच्छा, एक मिनट जरा मैं देख लूँ मेरा आगे. एक मिनट. जी आगे चलते हैं. 1A. A defendant husband may, where no earlier suit for restitution of conjugal rights is pending, claim for a decree of restitution of conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage or maintenance, which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it. ये भी clear है आपको? जी. ठीक है. 1B. A defendant wife may, in the written statement to a suit for restitution of conjugal rights, claim for a decree for dissolution of marriage, including Khullah, which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it. मैं ये पंखा बंद करना था. मेरा काइंडली अपनी साइड पे म्यूट कर दें कॉल, ताकि यहाँ पर आवाज़ ना आए. और ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे चल रहा है. मैं पढ़ा रही हूँ फैमिली कोर्ट एक्ट. अभी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मैंने, काइंडली आप इसको वहीं से कंटिन्यू करो, बाकी मैं पीछे से समझाती हूँ क्या हो रहा है. आवाज़ अच्छा जी, हम बात कर रहे थे रिटन स्टेटमेंट के हवाले से कि जो सेक्शन 8 में टाइम प्रिस्क्राइब है जो कि 15 दिन का है. लाजमी तौर पर डिफेंडेंट अपीयरेंस देगा फैमिली कोर्ट के सामने, रिटन स्टेटमेंट दायर करेगा, लिस्ट ऑफ विटनेसेस साथ वो अटैच करेगा और उसके अंदर मुख्तसर खुलासा दिया होगा उसने रिटन स्टेटमेंट में कि किस चीज़ के हवाले से वो एविडेंस देना चाह रहे हैं. ठीक है. और फिर अगर वो उस स्पेसिफाइड डेट पे रिटन स्टेटमेंट नहीं दाखिल कर पाता तो सफिशेंट रीज़न की बुनियाद पर उसे टाइम अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करें, जो कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. साथ जितने भी रेलेवेंसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच होंगे. अब 1A में मैं आपको ये बता रही थी कि अगर जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो हस्बैंड की तरफ से होता है वो कोई दावा नहीं दायर किया गया, ठीक है, और जो बीवी है उसने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा दायर किया हुआ है, तो वो उसी प्लेंट में रिटन स्टेटमेंट में ये क्लेम कर सकता है कि मैं अपने कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ, रिस्टोर करवाना चाह रहा हूँ. तो वो प्लेंट ही कंसिडर होगी, इसके लिए सेपरेट सूट वो फाइल नहीं करेगा. ये बार्ड है एक्सप्रेसली. इसी तरह डिफेंडेंट वाइफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के दावे में रिटन स्टेटमेंट में अपना क्लेम मांग सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का. ठीक है. और इसमें भी ये है कि सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा. ठीक है. अब ये आगे बात हो रही थी. A defendant wife may, in the written statement to a suit for restitution of conjugal rights, make a claim for dissolution of marriage, including khulla, which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it, provided that the proviso of subsection 4 of section 10 shall apply, where the decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of khulla. Section 10 subsection 4 में ये बताया गया है
कि अगर खुला की बेस पे सुलह नहीं हो पाती तो फौरी तौर पर डिग्री प्रोनाउंस हो जाएगी, तो वहाँ पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। Where a defendant relies upon a document in his possession or power, he shall produce it or copy thereof in the court along with the written statement. फिर जा बाकी जितने भी इसकी पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल करेगा और उसे प्रोड्यूस करेगा। Where he relies on any other document not in his possession or power as evidence in support of his written statement, he shall enter such documents in a list to be appended to the written statement, giving reasons for relevancy of these documents to the defense in written statement। और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स उसकी पोजेशन पे नहीं है लेकिन वो उस पर रिलाई कर रहा है तो रेलिवेंसी की लिस्ट लगा देगा और ये बताएगा कि क्यों ये रिक्वायर्ड है। Copies of written statement, list of witnesses and precise of evidence referred to in subsection 1 and the document referred to in subsection 2 shall be given to the plaintiff, his agent or advocate present in the court। तो वो रिटन स्टेटमेंट की जो कॉपीज़ हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं, जो प्रिसाइज समरी एविडेंस की और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लेंटिफ को, इसके एजेंट को या उसके एडवोकेट को जो प्रेजेंट होगा उसे सबमिट कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस, देन if it is proved that the summons or notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte, provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms as the family court directs be heard in answer to the suit as if he had appeared on the date fixed for his appearance। अच्छा जी, अब जो प्रिस्क्राइब डेट है उस दिन डिफेंडेंट नाकाम होता है फैमिली कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने में, और जब ये साबित हो जाए कि ड्यूली सर्व हुए थे तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। और अगर प्रोसीडिंग्स आगे एडजर्न कर दी गई हैं और अगर वो आके गुड कॉज असाइन कर देता है कि क्यों वो प्रीवियस नॉन अपीयरेंस रही है तो फिर उसे इन आंसर सुना जा सकता है। If it is not proved that the defendant was duly served as provided in subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summons and notices to the defendant and cause the same to be served in the manner provided in clause B, C of subsection 1 of section 8। और अगर ड्यूली सर्व नहीं हुआ तो दोबारा से फ्रेश समन्स नोटिस भेजे जा सकते हैं उसी तरीक़ेकार से जो कि सेक्शन 8 में बताया है। एक तो बताया ना कि प्रोसेस सर्विंग के ज़रिए, तामील कनंदे के ज़रिए, डाक रजिस्ट्री के ज़रिए, अफिक्सेशन के ज़रिए, प्रोक्लमेशन करके, इन तमाम तरीक़ों से फ्रेश समनिंग उसे की जा सकती है, की जाएगी। सॉरी, शेल का लफ्ज़ है। 5A, if the defendant fails to submit the written statement on or before the date under subsection 1, the defense of the defendant shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law। रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में नाकाम होता है तो उसका जो डिफेंस का राइट है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा और केस फिर डिसीजन दे देगा फैमिली कोर्ट। Subsection 6, in any case in which a decree is passed ex parte against the defendant under this act, he may apply within 30 days of the service of notice under subsection 7 of the passing of the decree to the family court by which the decree was passed for an order to set it aside, and if he satisfied the family court that he was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause for appearing when the suit was heard or called for hearing, the family court shall, after service of notice on the plaintiff and on such term as to cost as it deems fit, make an order for setting aside the decree as against him, and shall appoint a day for proceeding with the suit, provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all or any of the other defendant also। अच्छा, एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी गई तो 30 दिन का टाइम है उसके पास कि जब उसे नोटिफाई किया गया है तो 30 दिन के अंदर वो एक्स पार्टी को सेटिस्फाइड करने की एप्लीकेशन दे सकता है जिसमें वो सेटिस्फाई करेगा कि ड्यूली सर्व नहीं हुआ था और किसी माकूल वजूहात की बना पर वो पेरेंट्स नहीं दे सका। अब इस पर भी लीगल प्रोपोजिशन आ सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर फैमिली सूट में एक्स पार्टी डिग्री इनिशिएट कर दी गई है तो उसको सेटिस्फाइड करने का क्या तरीक़ाकार है, उसके लिहाज से सबसेक्शन 6 है। लेकिन बाज़-औक़ात ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे लगता है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड गुजर गया है लेकिन कभी आपको नोटिस सर्व नहीं हुए तो फिर आप उस एक्स पार्टी डिग्री को कैसे सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। उसके लिए आप सेक्शन 7 के तहत डिफेंस लोगे जिसमें ये कहोगे कि फैमिली कोर्ट की तरफ से कभी उस डिग्री की कॉपी आपको प्रोवाइड सबमिट ही नहीं की गई। तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है कि जिसके तहत आप एक्स पार्टी डिग्री की प्रोसीडिंग्स को सेटिस्फाइड कर सकते हैं क्योंकि जब से नोटिफाई होता है वहाँ से उसकी अफेक्टिवनेस स्टार्ट होती है। बात समझ आ रही है दोनों को? आप मैसेज पे बस लिख दें, बोलने की ज़रूरत नहीं है।
बस मैसेज पे लिख दें मैं ताकि सब सेक्शन 1 पे जाऊं। दानियाल क्लियर है ना आपको? हुमैरा आपको क्लियर है? बस मैसेज पे लिख दो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपोजिशंस आने हैं ना, इसलिए हर क्लॉज को बड़े ध्यान से पढ़ो, इधर से ही आपके जवाब निकलते हैं। सब सेक्शन 7 पे देखें इसे ज़रा। द नोटिस ऑफ पासिंग ऑफ एक्स पार्टी डिग्री रेफर टू इन सब सेक्शन 6 शेल बी सेंट to the defendant by the family court, mandatory provision है ये, together with certified copy of the decree within 3 days of the passing of decree through process server or by registered post, acknowledgement due or through courier service or any other mode or manner as it may deem fit। अगर कोई legal proposition आई कि आपको कभी नोटिफाई नहीं किया हुआ तो आप सब सेक्शन 7 का सहारा ले सकते हो कि आपको तो कभी नोटिफाई नहीं किया गया, ये तो मैंडेटरी प्रोविजन थी कि फैमिली कोर्ट की तरफ से 3 दिन के अंदर आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलनी चाहिए थी इन तमाम तरीक़ेकार से। फिर आगे देखें सब सेक्शन 8 में क्या कहा गया है। सर्विस ऑफ नोटिस एंड इट्स अकम्पनाइमेंट in the manner provided in subsection 7 shall be deemed to be due service of the notice and decree on the defendant। सब सेक्शन 7 के तहत जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उससे ये प्रिजम्पशन ले डाउन होती है कि ड्यूली सर्व्ड हो गया नोटिस डिफेंडेंट पे। तो जब वो कभी पहुंचे ही नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जिसके तहत आप उसकी डिग्री को सेट असाइड करवा सकते हैं क्योंकि इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। हुमैरा यहाँ तक क्लियर है आपको? काइंडली मैसेज पे बता दें आप। हुमैरा इधर मैसेज पे आप कर दें, मुझे पता चल जाएगा मैं ताकि आगे चलूँ। जी मैम क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी। अब सेक्शन 10, इस पे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे आपको मतलब इससे क्या मुराद है कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स क्यों होती हैं। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग बेसिकली इसलिए होती हैं कि अगर मामले को प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने से पहले ही रिजॉल्व किया जा सकता है ना, तो उसके लिए क्योंकि फैमिली लॉज का मकसद ही ये है कि फैमिली डिस्प्यूट को एक्सपीडिशियस वे में रिजॉल्व किया जाए। ये नहीं है कि ट्रायल को मज़ीद आगे आप प्रोलॉन्ग करें। अगर सिचुएशन पहले ही ख़त्म हो सकती है तो हम उसको एप्लीकेबल करेंगे। सेक्शन 10 प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। When the written statement is filed, the court shall fix an early date for pre-trial hearing of the case. On the date so fixed, the court shall examine the plain, the written statement if any, and the precise of evidence and documents filed by the parties, and shall also, if it so deems fit, hear the parties and their counsel. Subsection 3, the family court may, at the pre-trial stage, ascertain the precise points of controversy between the parties and attempt to effect compromise between the parties. Subject to subsection 5, if compromise is not possible between the parties, the family court may, if necessary, frame precise points of controversy and record evidence of the parties. In a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage, and in case of dissolution of marriage through khulla, may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower or up to 25% of her admitted prompt dower to the husband. Subject to subsection 5, in the decree for dissolution of marriage, the family court shall direct the husband to pay whole or part of the outstanding deferred dower to the wife। अच्छा, अब इसमें यह कि जब रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी जाएगी तो फिक्सेशन की जाएगी डेट की प्री ट्रायल हियरिंग के लिए। ठीक है, फिक्स डेट पे क्या होगा, प्लेंट को एग्जामिन किया जाएगा, रिटन स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाएगा और जो प्रिसाइज उन्होंने एविडेंस उसके अंदर लिखी है प्लेंटिंग में, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं पार्टीज़ की तरफ से, और अगर ज़रूरी हुआ तो पार्टीज़ और उनके कौंसल को भी सुना जाएगा। फिर डिटरमिन किया जाएगा कि इन दोनों के दरमियान कंट्रोवर्सी क्या है, फिर कोशिश की जाएगी कि इनके दरमियान रिजॉल्व हो जाए मैटर। अगर कंप्रोमाइज़ इफेक्टिव ना हो सका तो फिर इश्यूज़ फ्रेम किए जाएंगे कंट्रोवर्सी के और उनकी एविडेंस रिकॉर्ड होगी। डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में ये होता है कि अगर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा है और रिकन्सिलिएशन नाकाम होती है तो इमीडिएटली फैमिली कोर्ट डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए डिग्री प्रोनाउंस कर देगी। ठीक है, और खुला की सूरत में वाइफ को 50% अपना डेफर डॉवर छोड़ना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था डेफर डॉवर हस्बैंड के इंतकाल के बाद या फिर डाइवोर्स की सूरत में दिया जाता है। 50% उसका छोड़ना पड़ेगा और अगर प्रॉम्प्ट डॉवर आपने ले लिया है तो उसका 25% आपको वापस करना पड़ेगा। हालांकि हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में खुला में ये होता है कि खुला के थ्रू अगर आप मैरिज डिसॉल्व करवाना चाहते हैं तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मैं अलहदा से ना आपको खुला, डाइवोर्स और जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जैसे हजानत का कॉन्सेप्ट है, इद्दत का पीरियड है, जो कि लॉ से रिलेटेड अगर डिसीजन पे आ जाए कोई तो थोड़ा बहुत उसका भी मैं आपको अलहदा से लेक्चर दूंगी, ताकि अगर वो आपसे कहता है कि आपने ऑर्डर लिखना है
तो उन ऑर्डर्स में आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी हवाला दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये है कि अगर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सिंपल डिग्री प्रोनाउंस हुई है तो रिमेनिंग जो आउटस्टैंडिंग डेफर डॉवर है वो वाइफ को देना पड़ेगा। अच्छा जी, सेक्शन 11 पे देते हैं एविडेंस की रिकॉर्डिंग के हवाले से क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है। ऑन द डेट फिक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस द फैमिली कोर्ट शेल एग्जामिन द विटनेसेस produced by parties in such order as it deems fit. The family court shall record or cause to be recorded the substance of the statement of a witness or may record or cause to be recorded the statement of a witness through audio or video recording. मतलब इसमें आप देखते हैं कि मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है। The court shall not issue any summons for the appearance of any witness unless within 3 days of the framing of issues any party intimates the court that it desires a witness to be summoned through the court and the court is satisfied that it is not possible or practicable for such party to produce the witness. ठीक है, जहां पर अदालत मुतमिन हो जाती है कि पार्टी खुद से गवाह को नहीं बुला सकती तो उसके लिए क्राइटेरिया ये कि इश्यूज फ्रेम होने के बाद 3 दिन के अंदर आप उसकी अपेयरेंस के लिए अदालत को एप्लीकेशन फाइल करें। फिर अदालत ये डिटरमिन करेगी कि जहां पर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको तलब किया जाएगा। The witness shall give their evidence in their own words, provided that the parties or their counsel may further examine, cross-examine, or re-examine the witnesses. Provided further, the family court may forbid any question which it regards as indecent, scandalous, frivolous, or which appears it to be intended to insult or annoy or needlessly offensive in form. गैर अखलाकी सवालों से family court रोक सकती है। The family court may, if it so deems fit, put any question to any witness for the purpose of elucidation of any point which it considers material in the case. The family court may permit the evidence of any witness to be given by means of an affidavit. बयान हल्फी के जरिए भी evidence allow की जा सकती है, provided that if the court deems fit, it may call such witness for the purpose of examination in accordance with subsection 3. सबसेक्शन 3 में जो तरीक़ाकार बताया कि किसी भी गवाह की अगर एग्जामिनेशन करना है, री एग्जामिनेशन करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ये एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करना है तो सब सेक्शन 3 वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 12 भी आ सकता है पोस्ट कंसीलिएशन के नाम से कि फिर एक कोशिश की जाएगी कि मैटर को रिजॉल्व किया जा सके। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। After the close of evidence of both sides, the family court shall make another effort to effect a compromise or reconciliation between the parties within a period not exceeding 15 days. If such compromise or reconciliation is not possible, the family court shall announce its judgment and give a decree. ठीक हो गया। 12A cases to be disposed of within a specified period. The family court shall dispose of a case, including a suit for dissolution of marriage, within a period of 6 months from the date of institution, provided that where a case is not disposed of within 6 months, either party shall have a right to make an application to the High Court for necessary direction as the High Court may deem fit. Clear है दोनों को? यहाँ तो कोई सवाल तो नहीं है, बस मैसेज पे कर दें ताकि मैं आगे चलूँ। सेक्शन 40 में स्टार्ट करने लगी हूँ आगे। आप दोनों को क्लियर है तो द क्लियर का मैसेज कर दें, फिर मैं चलती हूँ आगे। ठीक है। अपील का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 अपील नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड, यहाँ से बढ़ती हैं से अ डिसीजन गिवन और डिक्री पास बाय फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल। मतलब जो भी फैसला फैमिली कोर्ट प्रोनाउंस करेंगी वो तब आम अपीलेबल है। किसको? फॉरम कौन सा? टू द हाई कोर्ट वेयर द फैमिली कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज or a person notified by government to be of the rank and status of a district judge or an additional district judge, and to the district court in any other case. No appeal shall lie from a decree passed by family court for a dissolution of marriage except in the case of dissolution for reasons specified in clause A of item 8 of section 2 of Dissolution of Muslim Marriage Act. For dower not exceeding 100,000, for maintenance of rupees 5,000 or less per month. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि डेजोल्यूशन की जो सेक्शन 2 की 8 ग्राउंड है जिसमें ये कहा कि उसने उसकी लाइफ को मिजरेबल बनाया हुआ है, हैबिचुअली उसको मारता है। ठीक है, उसके अलावा डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के किसी भी ग्राउंड पे अपील नहीं हो सकती। दूसरी बात, 1 लाख से कम का हक़ महर है उस पर भी डिक्री नहीं हो अपील नहीं हो सकती। और मेंटेनेंस की अगर अमाउंट 5,000 है या 5,000 से कम है उस पर भी अपील नहीं हो सकती। और जिसमें अपील नहीं हो सकती तो आप ये समझ लें कि आप रिट में जाएंगे।
नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर पास बाय द फैमिली कोर्ट। इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ अपील रिवीजन नहीं हो सकती। रिव्यू चूँकि एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है तो रिव्यू में जा सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, इसीलिए रिट इसकी रेमेडी बनती है। द एपलेट कोर्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल डिस्पोज ऑफ द पीर विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months। 4 माह में डिस्पोज ऑफ किया जाएगा मैटर। सेक्शन 15 पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस। अ फैमिली कोर्ट में इशू समन्स टू एनी पर्सन टू अपीयर and give evidence or to produce or cause the production of any document, provided that no person who is exempt from personal appearance in a court under subsection 1 of section 133 of Code of Civil Procedure shall be required to appear in person. A family court may refuse to summon a witness or to enforce a summon already issued against a witness when, in the opinion of the court, the attendance of witness cannot be procured without such delay, expense, or inconvenience as in the circumstances would be unreasonable. ठीक है, अपेयरेंस के लिए, एविडेंस देने के लिए, डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए विटनेस को समन किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को समन किया जा सकता है। जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं उनकी पर्सनल अपेयरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, और जो कि अननेसेसरी डिले एक्सपेंस का बाइस बनेगा उसको समन भेजने से भी फैमिली कोर्ट इनकार कर सकती है। If any person to whom a family court has issued summons to appear and give evidence or to cause the production of any document before it willfully disobeys such summon, the family court may take cognizance of such disobedience after giving such opportunity to explain, sentence him to a fine of 5,000 rupees। ठीक है, अच्छा जी, जो नॉन कंप्लायंस करेगा 5,000 रुपया जुर्माना है। उसके बाद सेक्शन 16 देखते हैं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट इफ ही विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज offers an insult to the family court, causes an interruption in the work of family court, misbehaves with any person in the court premises, or uses abusive language, threats, or uses physical force or intimidates in any form, refuses to answer any question put by the family court which he is bound to answer, refuses to take oath to state the truth or to sign any statement made by him in the family court, and the family court may forthwith try such offence for such person for such contempt and sentence him to a fine not exceeding 2,000। इंसल्ट कर रहा है, काम में मुदाखलत कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है किसी बंदे के साथ, थ्रेट, फिजिकल फोर्स यूज़ कर रहा है या डराने की कोशिश कर रहा है, सवाल का जवाब देने से इनकारी है, कोई स्टेटमेंट कोई ट्रूथ स्टेट करना है उसके हवाले से मना कर रहा है, सिग्नेचर नहीं कर रहा, ओथ नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो ऐसे के फौरी तौर पर ट्रायल चलेगा और उसे 2,000 रुपये जुर्माना होगा। सेक्शन 17 में सिंपल ये याद रखना है कि QSO की प्रोविज़न, CPC एप्लीकेबल नहीं, CPC सिर्फ सेक्शन 10 एंड 11 तक एप्लीकेबल है, जिसमें रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसके अलावा 8 से लेके 11 तक ओथ एक्ट 1872 एप्लीकेबल है फैमिली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा 17A सूट फॉर मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है। इन अ सूट फॉर मेंटेनेंस, ये बेयर एक्ट इसलिए रीड करना ज़रूरी है कि आपको जब लीगल प्रोपोजिशन आती है ना तो फाइंडिंग्स आप देते हैं तो उसमें आपने लॉ भी बताना होता है। ठीक है, फिर आप डिसीजन देते हैं। In suit for maintenance, the family court shall, on the date of the first appearance of the defendant, fix interim monthly maintenance for wife or a child, and if the defendant fails to pay the maintenance by 14 day of each month, the defense of the defendant shall stand struck off, and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of averments। averments का मतलब है जो आपने क्लेम या जो चीज़ मांगी होती है, असर्ट की होती है दावे में, in the plaint and other supporting documents on record of the case। In a decree for maintenance, the family court may fix an amount of maintenance higher than the amount paid for in the plaint due to a flux of time and any other relevant circumstances, and prescribe the annual increase in the maintenance. If the family court does not prescribe the annual increase in the maintenance fixed by the court shall automatically stand increase at the rate of 10% each year. For the purpose of fixing the maintenance, the family court may summon the relevant documentary evidence from any organization, body, authority to determine the estate and resources of the defendant। पहली तारीख पे जब डिफेंडेंट अपेयर देगा तो मंथली इंटरम मेंटेनेंस अदालत लगा देगी, और अगर हर माह की 14 तारीख तक वो सबमिट नहीं करता तो उसका जो क्या कहते हैं स्टांस है, डिफेंस है, वो स्ट्रक ऑफ समझा जाएगा और प्लेंट में जो क्लेम प्रेजेंट किया गया उसकी बेस पे डिग्री प्रोनाउंस कर दी जाएगी और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। अब मेंटेनेंस की डिग्री में मेंटेनेंस अमाउंट फ़िक्स किया जा सकता है जैसे हालात वाक़ियात
तब्दील होते हैं, तो जैसे कि इंक्रीमेंट होगी है, महंगाई ज़्यादा होगी, तो उसकी मुनासबत से मेंटेनेंस की अमाउंट फिक्सेशन की जा सकती है, या एनुअल इंक्रीज़ भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। अगर एनुअल इंक्रीज़ मेंटेनेंस का प्रेस्क्राइब नहीं किया गया तो आप यही समझें कि सालाना 10% के हिसाब से जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस की फिक्सेशन के लिए रेलिवेंट्री डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी से, ताकि उसको रिसोर्सेज को डिटरमिन किया जा सके। 17B, पावर ऑफ द कोर्ट to issue commission subject to such condition and limitation as may be prescribed. The court may issue a commission to examine any person, make a local investigation, inspect any property or document. Appearance through agents. If a person required under this act to appear before a family court otherwise than as witness is a parda nasheen lady, the family court may permit her to be represented by a duly authorized agent. सेक्शन 19 में बस ये याद रखनी है कि प्लेंट और जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होगा उस पर 15 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी, 15। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 20 पे आ जाएं, फैमिली कोर्ट एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को फैमिली कोर्ट सुनेगी ना, तो एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास काम करेगी। कौन से ऑफेंस से रिलेटेड? जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस से रिलेटेड हैं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट से रिलेटेड हैं, और समरी प्रोसीडिंग्स जैसे कंडक्ट होती हैं उसके मुताबिक ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। और कॉन्टेम्प्ट के अलावा जो कॉग्निजेंस ली जाएगी ऑफेंस पे, वो यूनियन काउंसिल की कंप्लेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल या एग्री पार्टी की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद 21A भी देख लेते हैं, इंटरम ऑर्डर पेंडिंग सूट। द फैमिली कोर्ट में पास एन इंटरम ऑर्डर to preserve and protect any property in dispute in a suit and any other property of a party to the suit, the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the decree if and when passed. प्रॉपर्टी की प्रेजर्वेशन के लिए जिसके हवाले से डिस्प्यूट है, इंटरम ऑर्डर पास किया जा सकता है। उसके बाद if a family court decrees dissolution of Muslim marriage, the family court shall immediately but not later than 3 days from the decree send by registered post or other means a certified copy of the decree to the concerned chairman of arbitration council, and upon receipt of the decree the chairman shall proceed as if he had received intimation of talaq under the Muslim family laws ordinance. ठीक हो गया। Bar on the issue of injunction by family court. A family court shall not have the power to issue an injunction to or stay any proceeding pending before a chairman of an arbitration council. Section 23. Validity of marriages registered under the Muslim Family Laws Ordinance not to be questioned by family courts. A family court shall not question the validity of any marriage registered in accordance with the provision of Muslim Family Laws Ordinance, nor shall any evidence in regard thereto be admissible before such court. ठीक हो गया। सेक्शन 25 देख लेते हैं, फैमिली कोर्ट डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर पर्पसेस ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। A family court shall be deemed to be a district court for the purpose of Guardians and Wards Act, and notwithstanding anything contained in this act shall, in dealing with matters specified in that act, follow the procedure prescribed in that act. फैमिली कोर्ट गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये स्केड्यूल देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको मैटर्स बताया था कि फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला, डॉवर, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, गार्डियनशिप, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज, डॉरी, द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ अ वाइफ एंड चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर, एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द निकाहनामा। और ये PPC के तहत हर्ट के ऑफेंसेस हैं। ये मेरा ख्याल से शजाए खफीफा है, असॉल्ट आ जाता है, और इसमें कन्फाइनमेंट के सेक्शंस हैं, और जो थ्रेट वगैरह किया जाता है, डराया जाता है, उसके हवाले से क्रिमिनल इंटीमिडेशन है मेरा ख्याल से ये। तो इसके तहत भी फैमिली कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। जी, आपको समझ आया दोनों को? यहाँ पर मैसेज बस कर दें तो ताकि आगे मैं चलूँ। Yes, sir. अच्छा, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो कोई नई चीज़ ना पढ़ लें, लिमिटेशन एक्ट बता दें मुझे, या ये जो प्रीवियस लॉ है वो आप करना चाह रहे हैं, राय दे दें मैम ताकि मैं आगे लिमिटेशन ऐड चलूँ। कर दिया। जी, हुमैरा करवा दो ना लिमिटेशन। जी मैम करवा दें।
बाकी अभी देख लेते हैं, लिमिटेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक कोरोना वायरस पे भी करवाना है, रिसर्च का काम देना है, लेकिन अभी चूँकि स्टार्ट किए हैं तो शायद आज ना कराऊँ, कल से मैं आपको करवा दूँ। अच्छा जी, क्या लिखना था? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के हवाले से इस दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन में ये चेंजेस किए हैं कि जो चार्ट है ना लिमिटेशन एक्ट का, उसमें से सवाल बना के दे दिया है कि ये दावा है तो कितने लिमिटेशन पीरियड में दायर हो सकता है। तो तैयारी इस तरह से मैंने चेंज की है कि मैं आपको इसमें से सेक्शंस भी पढ़ाऊँगी और मैंने चार्ट भी बना दिया है, ठीक है? तो वो चार्ट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सूट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, लिमिटेशन एक्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है ना दोनों को? Yes. जी, सेक्शन 3 में सबसे पहले आते हैं जिसमें जनरल रूल बताया गया है लिमिटेशन के हवाले से। सेक्शन 3, डिसमिसल ऑफ सूट एक्सेट्रा इंस्टीट्यूटेड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 25 inclusive. Every suit instituted, appeal preferred, and application made after the period of limitation prescribed therefore by the first schedule shall be dismissed although limitation has not been set up as a defense. अब ओपोनेंट साइड ने ये डिफेंस लिया हो या ना लिया हो, लेकिन लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर आप कुछ भी लेके आते हैं, चाहे वो दावा है, अपील है या एप्लीकेशन है, तो उससे डिसमिस कर दिया जाएगा। Explanation: A suit is instituted in ordinary cases when the plaint is presented to the proper officer. In case of a pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made, and in case of a claim against a company which is being, ये wound up है, ये गलत लिखे हुए स्पेलिंग, being wound up by the court when the claimant finds first sent in his claim to the official liquidator. अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज इसमें एक्सप्रेस की गई कि आप दावा उस टाइम इंस्टीट्यूट समझें जब प्लेन प्रेजेंट कर दी जाती है। दूसरी सिचुएशन दी है पॉपर की सूरत में, सूट कब इंस्टीट्यूट समझा जाता है? पॉपर का मतलब ये होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, इतने भी पैसे नहीं है कि वो कॉस्ट बियर कर सके दावे का, ठीक है? तो उससे पहले जब वो अलाउ परमिशन लेगा कि मुझे एज अ पॉपर लड़ने की इजाज़त दी जाए, वहाँ से दावा इंस्टीट्यूट समझा जाएगा। और अगर कंपनी के ख़िलाफ़ क्लेम है, तो जब पहली दफ़ा कोई क्लेमेंट आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास अपना क्लेम लेके कंपनी के ख़िलाफ़, तो उस टाइम आप समझे कि क्लेम के कंपनी के ख़िलाफ़ दावा इंस्टीट्यूट हो गया। हाँ जी, क्लियर है दोनों को? जी मैम। Section 4, where court is closed when period expires, where the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed. The suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the date that the court reopens. Section 5 जो कि condonation of delay का concept है, extension of period in certain case, any appeal or application for revision or review of judgment or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted. यहाँ से असल बात है, may be admitted after the period of limitation prescribed therefore, when the appellant or applicant satisfied the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. अच्छा, अब ये देखें कि सेक्शन 5 एप्लीकेबल किस पे हो रहा है? अपील पे हो रहा है, रिवीजन की एप्लीकेशन पे हो रहा है, रिव्यू पे हो रहा है या एप्लीकेशन पे हो रहा है? यहाँ पर कहीं भी दावे का जिक्र नहीं है। इट मीन्स ये सूट पे एप्लीकेबल नहीं है और इसके लिए आपको सफिशिएंट कॉज देना जरूरी है। Explanation: The fact that the appellant or applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period of limitation may be sufficient cause within the meaning of this section. जी दानियल, यहाँ तक क्लियर है आपको? मैम ये सेक्शन 4 बताइएगा। सेक्शन 4 में ये कहा है कि जिस दिन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है किसी दावे, अपील और एप्लीकेशन के लिए, उस दिन अदालत बंद है। तो अगले दिन जब अदालत खुलेगी ना, तब आप फाइल कर सकते हैं। अब समझ आ गई? जी ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा, सेक्शन 3 जनरल रूल है और सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये आगे ऑनवर्ड सारी उसकी एक्सेप्शंस चल रही हैं। अच्छा जी, सेक्शन 6 पे आते हैं, लीगल डिसेबिलिटी। जब आप कोई अपना कानूनी हक मांगना चाहते थे, उस टाइम आप किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और प्रोसीडिंग और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज at the time from which the period of limitation is to be reckoned. Reckoned means estimated.
अ माइनर, इनसेन और एन इडियट। वो कहते हैं कि जब एक बंदा इंटाइटल्ड था कि दावा इंस्टीट्यूट कर सकता था, प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता था, या एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता था, जहाँ से लिमिटेशन पीरियड का तयन किया जा सकता है। लेकिन अब मसला क्या है कि ये 3 सिचुएशंस आ गई हैं, माइनर है, इनसेन है, ये इडियट है। अब आगे क्या करेगा वो? ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और प्रोसीडिंग और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड as would otherwise have been allowed from the time prescribed therefore in the third column of the first schedule। फर्स्ट schedule के थर्ड कॉलम में लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है हर दावे और एप्लीकेशन के लिए या फिर अपील के लिए। और इन सेक्शन 48 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सेक्शन 48 में बेसिकली ये बताया हुआ है कि जब आप दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूशन अप्लाई करते हैं ना, हो सकता है कि आपने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन वापस ले लिया है, तो आपके पास 6 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, उससे अजाफी नहीं मिलेगा आपको। पहले ये 12 साल का टाइम पीरियड हुआ करता था। पहली जो एग्जीक्यूशन की आप एप्लीकेशन देते हो ना, उसके लिए 3 साल का टाइम पीरियड होता है। लेकिन बाज़-औक़ात होता है कि आपका कंप्रोमाइज़ हो गया, आपने एग्जीक्यूशन वापस ले लिया, तो दोबारा एग्जीक्यूशन जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो 6 साल का टाइम पीरियड है। ये बात याद रखना, ये बात सेक्शन 48 में बताई गई है सीपीसी के। मैम इसमें एक थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर 3 साल में आपकी एक एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है, एग्जीक्यूशन की, और वो विदड्रॉ हो गया, तो फिर वो टाइम पीरियड 6 ईयर्स पे जाता है, अदरवाइज वो 3 साल ही है। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ। जी इट मीन्स कि सेकंड एग्जीक्यूशन पटिशन अलाउड है, बार नहीं की गई, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी reckoned affected by two such disabilities or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period both disabilities have ceased as would otherwise have been allowed from the time so prescribed। आप अगर गौर करें तो पहली प्रोविजन में इनिशियल डिसेबिलिटी है, दूसरी में 2 डिसेबिलिटीज़ हैं, तो जब तक डिसेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाएंगी वो ना तो दावा दायर कर सकता है ना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। वो उसी सूरत में कर सकता है जब डिसेबिलिटी सीज कर जाएगी, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन पढ़ते हैं। Where the disability continues up to the death of such person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed for the time so prescribed। ठीक है, डिसेबिलिटी उसकी डेथ तक रहती है, तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब इंटाइटल हो जाएंगे ना उसकी डेथ के बाद, तब वो दावा दायर करेंगे या एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जितना टाइम पीरियड अलाउड होगा उसी के अंदर। Subsection 4. Where such representative is at the date of the death affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply। Provision 1 and 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा जी, लीगल डिसेबिलिटी के हवाले से एक और सिचुएशन पढ़ते हैं सेक्शन 7 पे। लीगल डिसेबिलिटी के जो सेक्शन है 6, 7 एंड 8 है। Disability of one of several plaintiffs or applicants, where one of several persons jointly entitled to institute a suit or proceeding or make an application for the execution of decree is under any such disability and a discharge can be given without the concurrence of such person, will run against them all. But where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability has ceased। अच्छा, सब ने जॉइंटली अगर दावा इंस्टीट्यूट किया है, अगर सभी डिसेबिलिटी का शिकार है तो टाइम उनके खिलाफ रन नहीं करेगा, लेकिन अगर उनमें से एक भी अगर कॉन्सेंट दे सकता है ना, डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, तो टाइम फिर सबके खिलाफ रन करेगा। ये बात की गई है इसमें। सेक्शन 8 देखते हैं। स्पेशल एक्सेप्शंस, नथिंग इन सेक्शन 6 और 7 applies to suit to enforce the rights of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of disability or the death of the person affected thereby, the period within which any suit must be instituted or application made। अब इसमें यह बात की गई है कि सेक्शन 6 एंड 7 की प्रोविजन प्रियम्पशन के दावे पे एप्लीकेबल नहीं है, और जब आपकी डिसेबिलिटी सीज कर जाएगी ना, सिर्फ आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। आप ये ना समझो कि एक दावे का 12 साल का टाइम था तो फिर 12 साल मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है। 3 साल के अरसे में फिर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है आप दोनों को? यस। उसके बाद जनरल रूल एक और भी है सेक्शन 9 के पहले क्लॉज में, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन
नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट। चाहे सेक्शन 3 पे आए क्वेश्चन या सेक्शन 9 पे आए, सबसे पहले जनरल रूल बताओ और बाकी सारी फिर एक्सेप्शंस बता दो जितनी आपको याद रहती हैं। कह रहे हैं कि एक दफ़ा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाए ना तो कोई डिसेबिलिटी इनएबिलिटी इसको रोक नहीं सकती। ये है जनरल क्लॉज, एक्सेप्शंस आके अवेलेबल हैं। ठीक है दानियल। उसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 12 पे आ जाएं, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। एक्सक्लूजन का मतलब है निकाल देना। लीगल प्रोसीडिंग्स में जो टाइम लगा है ना वो निकाल दिया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। टाइम लिमिटेशन काउंट करने के लिए जो पहला दिन होगा ना, एस्टिमेट जहाँ से लगेगा, जैसे मैं कहती हूँ 10 तारीख से टाइम शुरू हो रहा है तो वो टाइम जो डेट है मैं निकाल दूंगी काउंट करने की घर से। समझ आ रही है दोनों को? जी मेरा आपको क्लियर है पहला जी क्लॉज? मैम। ठीक है। जी मैम। सब सेक्शन 2 ये मैंने ऐड इसलिए करवाया कि ये ना हो कि कोई प्रोविजन बन के आ जाए। सब सेक्शन 2 इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एन अपील, an application for leave to appeal, and an application for review of judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced, and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence, or order appealed from or sought to be reviewed shall be excluded। अच्छा जी, अब किसी भी अपील एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो रिव्यू की एप्लीकेशन है या किसी फैसले के खिलाफ आप आगे जाना चाह रहे हो, तो लिमिटेशन पीरियड कौन सा निकाल दिया जाएगा? जितना अरसा आपको कॉपी नहीं मिल जाती ना और फैसला प्रोनाउंस हुआ है, कॉपी मिलने तक वो टाइम पीरियड क्या होगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। Subsection 3, where a decree is appealed from or sought to be reviewed, the time requisite for obtaining a copy of the judgment on which it is founded shall also be excluded। Subsection 4, in computing the period of limitation prescribed for an appeal to set aside an award, the time requisite for obtaining a copy of the award shall be excluded। इसी तरह अगर वार्ड को आपने सेट असाइड करवाना है तो जितना टाइम पीरियड उसकी कॉपी लेने को लगाया है वो भी टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। Subsection 5, for the purposes of subsection 2, 3 and 4, the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence, order, judgment or award shall be deemed to be the time intervening between the day on which an application for the copy is made and the day actually intimated to the applicant to be the day on which the copy will be ready for delivery। अच्छा, 2, 3, 4 के लिए जितना टाइम पीरियड लगा ना आपको कॉपी लेने में, तो वो उसका दरमियानी वक्त सबर किया जाएगा। कौन सा? जिस दिन आपने अप्लाई किया कॉपी के लिए, जिस दिन आपको इंटीमेट कर दिया गया कि आपकी कॉपी डिलीवरी के लिए तैयार है। ठीक है। Section 13, exclusion of time of defendant's absence from Pakistan etc. and certain other territories. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the defendant has been absent from Pakistan and from the territories beyond Pakistan under the administration of federal government shall be excluded। जब डिफेंडेंट है ही बाहर पाकिस्तान की टेरिटरी से, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, काउंट नहीं होगा। फिर सेक्शन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाज़-औक़ात ये होता है कि आप दावे की प्रोसीडिंग्स देख रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस केस को सुनने की। जो जितना आपका लिमिटेशन पीरियड वहाँ पर ज़ाया हुआ है ना, वो आपके खाते में नहीं आएगा, वो टाइम पीरियड क्या होगा? एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। सेक्शन 14, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड in court without jurisdiction. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence any other civil proceeding, whether in a court of first instance or in a court of appeal, against the defendant shall be excluded where the proceeding is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which from the defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it। ठीक है। कुछ सिविल प्रोसीडिंग्स आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में, जहाँ पर ट्रायल कोर्ट जो होती है जिसके पास मैटर जाता है, या कोर्ट ऑफ अपील है, तो जितना अरसा वो वहाँ पर आपने गुड फेथ में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की हैं और डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से वो नहीं सुन सकती थी, तो टाइम पीरियड क्या होगा? वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। during which whether in court against shall be excluded। ठीक है। Subsection 2, in computing the period of limitation prescribed for any application, the time during which the applicant has been prosecuting with due diligence and the civil proceeding, whether in court of first instance or in a court of appeal, against the same party for the same relief
shall be excluded where such proceeding is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it. ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स की बात की गई है, नीचे एप्लीकेशन की बात की जा रही है, बाकी सारा कुछ सेम है कि गुड फेथ में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जा रही थी, तो जितना टाइम पीरियड वहां पर लगा है कि डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से वो जो टाइम लगा है उसे एक्सक्लूड कर लिया जाएगा। Explanation 1. In excluding the time during which a former suit or application was pending, the day on which that suit or application was instituted or made, and the day on which the proceeding therein ended shall both be counted. जिस दिन दावा दायर हुआ, जिस दिन end हुई हैं proceedings, वो time period exclude किया जाएगा। Explanation 2. For the purpose of this section, a plaintiff or an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. Explanation 3. For the purpose of this section, misjoinder of parties or the cause of or of causes of action shall be deemed to be a cause of a like nature with defect of jurisdiction. हाँ जी, क्लियर है दोनों को? मैम ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बताइएगा एक दफा, और 3 भी। एक्सप्लेनेशन का मतलब है जो प्लेंटिफ एप्लीकेंट प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कर रहा है ना, जिसने फाइलिंग की है, तो वो ये समझा जाएगा कि वो मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। अब क्लियर है? जी ठीक है मैम। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 भी बताइएगा। एक्सप्लेनेशन 3 में ये है कि जैसे कि पार्टीज जिनका ऐड होना ज़रूरी था या कोई भी ऐसी डिफेक्ट आ रहा है दावे में कॉजेज ऑफ एक्शन के हवाले से, वो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन समझा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद सेक्शन 17 पे आ जाए। दानियल जी थक तो नहीं गए? सलामत है ना? जी जी, स्टेमिना पैदा करो बस। अच्छा जी, सेक्शन 17 में हम सिचुएशन पढ़ते हैं। अगर ब्रेक लेनी है ना 1 मिनट की तो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वरना चलो फिर आगे में। चलो फिर। जी। अच्छा जी, सेक्शन 17 में ये बताया गया, ऐसा करते हैं 17 तक पढ़ के ना इसको बाकी एंड कर देते हैं, इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैंने चार्ट भी पढ़ाना है, थोड़ा सा काम ज़्यादा है। जी सही है। लेकिन कल मैंने आपको शायद बताया था कि कल के दिन ना हमने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस पढ़ा था, तो ये ग्रुप में ना पढ़ी है, मैं आपको अलहदा से भी रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के और बेयर एक्ट भी डिस्कस हुआ है। तो कल मैंने ना इस पर टेस्ट लेना है, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, ठीक है? प्रॉपरली इसको आपने तैयार करना है, सही है? बाकी जो इंग्लिश का काम है, अच्छा मुझे ये बताएं दानियल, वो आपकी चीज़ें कब पहुँचेंगी? क्या कह रहा था? मेरा ख्याल से 1 दिन तो लग ही जाता है। जी बिल्कुल, 1-2 दिन लग जाएंगे। चलो ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव है, ये क्लास में करवाना पड़ा तो करवा दूंगी ताकि इंग्लिश का काम स्टार्ट करूँ, वरना मैं जनरल नॉलेज में से करवा दूंगी। अच्छा जी, सेक्शन 17 देखते हैं कि राइट अभी अक्रू भी नहीं हुआ, मतलब कि वाकया नहीं हुआ, उससे पहले आपकी डेथ हो गई है, तो फिर अब क्या सिचुएशन होगी? Effect of death before right to sue accrues, where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased, ये decrease लिखा गया deceased है, of the deceased capable of instituting or making such suit or application. अब एक बंदा अगर वो जीता तो उसके पास हक होता कि वो दावा दायर कर सकता था, एप्लीकेशन कर सकता था, लेकिन राइट अराइज होने से पहले उसकी डेथ हो गई है, तो लिमिटेशन पीरियड वहां से कंप्यूट होगा, काउंट होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल दावा इंस्टीट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा। दानिया क्लियर है? मैम वो थोड़ा सा उनकी माइक ऑन था तो डिस्ट्रैक्शन हो गई, जरा थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। अच्छा मैं दोबारा करती हूँ। इसमें मैंने ये बात की है कि एक बंदा अगर जी रहा होता ना तो वो दावा भी दायर कर सकता था और एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता था, लेकिन राइट मिलने से पहले उसकी डेथ हो गई है, ठीक है? तो लिमिटेशन पीरियड वहां से काउंट होगा जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंटाइटल हो जाएंगे दावा इंस्टीट्यूट करने के और एप्लीकेशन फाइल करने के। अब क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, समझ आ गई? अच्छा जी, सब सेक्शन 2
where a person against whom, if he were living, a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute or make such suit or application. ठीक है. अच्छा, अब एक बंदा जिसके खिलाफ अगर वो जी रहा होता तो एप्लीकेशन या दावा इंस्टीट्यूट किया जा सकता, लेकिन इससे पहले कि राइट अराइज होता, उसकी डेथ होगी, तो टाइम लिमिटेशन पीरियड उस टाइम काउंट होगा जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ आप दावा दायर कर सकते हो और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. अब क्लियर है आपको? जी दानियाल, क्लियर है? यस. Nothing in subsection 1 or subsection 2 applies to suits to enforce rights of preemption or to suits for the possession of immovable property or of an hereditary office. ठीक है. preemption के दावे या जो immovable property की possession hereditary office जो होता है, इस पे ये provisions applicable नहीं होगी क्योंकि उसके लिए right accrue होना ज़रूरी है. जैसे preemption है, डिमांड नहीं करोगे तो राइट कैसे मिलेगा? ठीक है. कब्जे के लिए पहले से कोई राइट आपके एस्टैब्लिश होना चाहिए, या वरासती इंतकाल है तो वो चीज़ तो नहीं मिल सकती ना फिर. ठीक है. तो इन दावों पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. हाँ जी दानियाल, क्लियर है आपको? हेलो. यस सर. अच्छा, बाकी ये है कि कल इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा लंबा काम है इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर रही हूँ. मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पे. अच्छा, ये बताएं कि टेस्ट कितने बजे भेजूँ मैं? क्लास टाइम पे टेस्ट नहीं होगा, वो अलहदा से देना है आपको, टाइम खुद ही डिसाइड करना है. मैम क्लास के फ़ौरन बाद ही कर लीजिए. क्लास के फ़ौरन बाद, चलो ठीक है. अच्छा, ये अब जो ये चीज़ें रिवाइज़ करनी है ना, ये एक हफ़्ते में वाइंड अप करनी है. बाकी जो रिसाला मैंने मंगवाना है जजमेंट्स के लिए, वो भी मैं कल मंगवा लूँगी इंशाल्लाह. तो ये है कि ये इस हफ़्ते ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो मंडे आ रहा है. उसके बाद अगले महीने हमने ना मेक श्योर करना है जुलाई का कि सिविल लॉ 2 कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो जाएगा इतने की. ये बाकी इसको चीज़ें हम चलाना शुरू कर देंगे. मैं करती हूँ कोशिश, चीज़ें भी समझानी है भाई, इसको एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेके चलना. ठीक है. ये वाला पेपर इतना लंबा नहीं है, इसमें सीआरपीसी थोड़ी सी लंबी है, बाकी ये सब ओके है. हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का काम भी मुश्किल नहीं है, वो मैं करवा दूँगी. ये ज़रा थोड़ा तंग करता है. चलें ठीक है, इसको देख लेंगे. चलें आप फिर रिलैक्स करें, टेस्ट की तैयारी करें. इंशाल्लाह मैं कल इसका टेस्ट लेती हूँ आफ्टर क्लास. क्लास 4 बजे होगी और 5 बजे के बाद फिर आपका टेस्ट होगा. ठीक है. टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर मैं बता देती हूँ, मेरा आप भी सुन लें. ये आप दिखाती हूँ, ये इस तरह का ना आपको एक फ़ाइल आएगी, लिंक शेयर करूँगी, ये सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे. ठीक है. मैं इधर मेंशन कर दूंगी, अगर मैंने लिखा ना कि ये आपने अपनी आंसर शीट पे लिख के मुझे भेजना है तो आपने वैसे करना है. बाकी जो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछती हो ना तो वो आपने यहीं पर फिलअप करके ना आपने क्या करना है, मुझे सबमिट कर देना है. इधर सबमिट का ऑप्शन है. ठीक है. मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहीं पर ब्लैंक छोड़ सकती हूँ कि आप इधर ही टाइप करके भेज. मेरा फॉलो कर रही हूँ. तो फिर आपने बस मुझे बता देना कि आपने सेंड कर दिया ताकि मैं इसको देख लूँ. ठीक है. वरना अदरवाइज यही है कि क्वेश्चन पेपर बना के भेज दूंगी. ये तरीका वैसे ठीक नहीं है, वो रिकॉर्ड प्रिजर्व हो जाता है ना. चलो ठीक है मैम, देख लेंगे. ठीक है. बस आप टेस्ट की तैयारी करें. हुमैरा मैं आपको अलहदा से रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ, आप फिर उसको सुन लेना. अभी ज़रा स्टार्ट हो लो, फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी देखते हैं. ठीक है. चलें आप. ओके ठीक है. अल्लाह हाफिज़.